Okay, recording has started. Today we are going to cover lecture number 17. And in this lecture and the tomorrow's lecture, we are going to see W3 CSS. W3 CSS is one of the framework for styling our websites. Uh, as you can see that I have created various sections in the presentation. Uh, we'll see demo. We will see demo from W3C, and the content has been placed in the presentation slides. So let's start with the business. This is going to be the outline. Uh, Once we'll move forward, you'll find that it's again a huge framework, but simple to use framework. If you have just have the idea that how what all is there and how it has to be used, then you'll find it quite convenient to use W3 CSS. We'll start from the introduction. So W3 CSS is a quality alternative to Bootstrap. You can safely say that now in year 21 and in coming years, you will find W3 CSS is going to gain more popularity than Bootstrap, because using Bootstrap is a bit complex, but using W3 CSS it's easier to use W3 CSS. So in coming years, you will find that W3 CSS is going to gain the popularity, and its popularity graph will go above Bootstrap. So that's why I think at this stage, uh, learning W3 CSS is more productive than learning Bootstrap. It's a modern, responsive, and mobile first CSS framework. I already explained you the concept of mobile first CSS framework, that once we design our web pages, we consider the default style for the mobile screens, and then the alternatives could be tablets or the desktop screens. So this kind of, if we keep our default design for mobile, then we call it a mobile first CSS. So this is a modern trend that we should design our websites for uh, mobile first style, on a mobile first style. Then W3 CSS provides equality for all browsers like Chrome, Firefox, Edge, Internet Explorer, Safari, Opera. So again, it's something because it is a W3 standard. Then W3 CSS provides equality for all devices. For example, desktop, laptop, tablet, mobile. Fifthly, W3 CSS is a standard CSS only. No jQuery or JavaScript libraries are required to be used for styling. It is pure CSS manipulation. Then W3 CSS is free to use
and no license is required for using W3 CSS. How to use W3 CSS? To use W3 CSS in your website, just add a link. तो आप ये लिंक यूज कर लें, ये W3 स्कूल का लिंक है। आप ये कहीं भी पब्लिकली पड़ी हुई है, आप अपने गूगल ड्राइव में रख के उसको पब्लिक कर दें और उसका लिंक यूज कर सकते हैं। W3 CSS they have provided a public link, आप ये लिंक यूज कर सकते हैं। It is possible. You can also download it. आप डाउनलोड कर लें इसको एंड डाउनलोड करके अपने किसी फोल्डर में रख लें, तो आप उसको लिंक दे सकते हैं लाइक दिस। तो डाउनलोड लिंक ये है, ये मैंने आपको कल भी इसका दिखाया था एक दफ़ा, मैं दोबारा दिखा देता हूँ आपको। ये डाउनलोड अगर करना है आपने, क्योंकि फ्री है, कोई मसला नहीं है। अगर आप इसको क्लिक करते हैं, ये पड़ी हुई है CSS यहाँ पे, आप राइट क्लिक करके डाउनलोड कर लें इसको। सेव एज W3 CS है, इसे आप डाउनलोड कर लें। मैंने अभी दिखाता हूँ आपको, मैंने अपने फोल्डर में ये एक मैंने www रूट में मैंने W3 CSS का फोल्डर बनाया, ये यहाँ पे डाउनलोड करके रखी हुई है मैंने W3 CSS। लेट मी ओपन इट इन नोटपैड। तो ये देखें, नोटपैड पे अगर खोलेंगे तो ये पड़ी हुई है सारी पूरी डाउनलोड करके मैंने यहाँ रखी है जस्ट फॉर डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस। और इसी फोल्डर को मैंने राइट क्लिक करके ओपन इन कोड किया है, तो ये मेरा फोल्डर W3 CSS का फोल्डर खुल गया और इसके अंदर यू कैन सी W3 CSS भी नज़र आ रही है, ये यहाँ नज़र आ रही है, खुली हुई है, सारा पूरी की पूरी है। इट इज़ स्मॉलर देन बूटस्ट्रैप, इसका साइज कम है, टोटल ऑफ 235 लाइन्स। अच्छा, अब ये आ गया और इसे हम यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक डिफरेंट एग्जांपल्स का फोल्डर बनाया हुआ मैंने। फॉर एग्जांपल ये कंटेनर का फोल्डर मैंने खोला हुआ है यहाँ पे। दिस कंटेनर की फाइल है, कंटेनर फाइल इज प्लेस्ड इन W3 एग्जाम्पल फोल्डर। ये फोल्डर है, इस फोल्डर के अंदर ये कंटेनर की फाइल खोली हुई है मैंने। अच्छा, इस फाइल में लिंक मैंने किस तरह किया है इसको, ये अगर मैं हेड को खोलूँगा तो हेड के अंदर ये आपको लिंक नज़र आ रहा है। ये डबल डॉट का क्या मतलब है? एनीबॉडी हु हैज आइडिया ऑफ डबल डॉट? डबल डॉट से क्या होता है? सर अभी नजर आ रही है। आप एक लेवल अप चले जाते हैं, ठीक है। ये डबल डॉट किया अगर मैंने, तो मैं एक लेवल अप चला गया, क्योंकि ये जो मैंने ये फाइल रखी हुई है कंटेनर फाइल, ये एक लेवल जब मैं अप गया हूँ तो मैं W3 CSS के फोल्डर में, ये पड़ी हुई है W3 example.html फोल्डर में। जब मैंने डबल डॉट किया तो मैं चला गया W3 CSS फोल्डर में। जब मैं W3 CSS फोल्डर में गया हूँ तो यहाँ पे पड़ी हुई है, ये जो फाइल है मेरी CSS फाइल, ये मेरी एक पेरेंट फोल्डर में पड़ी हुई है, W3 example.html के पेरेंट फोल्डर में पड़ी हुई है। और कंटेनर इज प्लेस्ड इन W3 example फोल्डर। और इसके पेरेंट में गए, पेरेंट में चला गया, डबल डॉट लगा के फॉरवर्ड स्लैश किया तो अब मुझे इसकी फाइलें यहाँ पे नज़र आएंगी। डबल फॉरवर्ड स्लैश करूँगा तो ये मुझे नज़र आ रहा है। इसके अंदर एक इमेजेस का फोल्डर है, एक मिसलिनियस फोल्डर है, एक W3 example.html फोल्डर है जिसके अंदर ये वाली फाइल पड़ी हुई है container.html, और W3 CSS भी पड़ी हुई है। सो दिस इज़ हाउ आई हैव क्रिएटेड
link with downloaded version of W3 CSS file. So this was an important demo. I hope it is clear कैसे इसको डाउनलोड करके लिंक किया मैंने, और इसको मैंने W3 container.html को खोला हुआ है, तो ये आपको नज़र आ रही है, खुली हुई है। इफ़ आई रिमूव, अगर मैं कमेंट आउट कर दूं इसको, तो आपको नज़र आएगा कि ये कमेंट में डाला मैंने, तो ये रिमूव हो गई, सारा स्टाइल रिमूव हो गया। मैं कमेंट्स में इसके रिमूव करूँगा तो ये दोबारा स्टाइल अप्लाई हो गया, ठीक हो गया। लेकिन आप डायरेक्टली कहीं भी ऑनलाइन रख लें, अपनी गूगल ड्राइव के किसी फोल्डर में रख दें, उसे पब्लिक कर दें, वहाँ से लिंक दे दें, W3CL का यूज़ कर लें एक लिंक, ऑल इज़ पॉसिबल, वहाँ से भी अप्लाई कर देगा ये। अगर आप इन्होंने जैसे लिंक दिया हुआ है, ये लिंक भी आप यूज़ कर सकते हैं, दिस लिंक कैन ऑल्सो बी यूज्ड, फिर भी ये काम कर जाएगा। ठीक हो गया जी। तो ये कैसे डाउनलोड करना है, कैसे इसे अप्लाई करना है लोकल फोल्डर में, दिस ऑल हैज़ बीन एक्सप्लेन्ड हियर। और W3CS का डेमो भी दे दिया आपको मैंने, दिखा दिया कैसे यूज़ हो रही है। सो दिस सेक्शन इज़ कंप्लीट, इंट्रो सेक्शन इज़ कंप्लीट। ओके, इसके बाद कलर्स में, अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा इन्होंने इंट्रो सेक्शन में एक ब्रीफ ओवरव्यू दे दिया है कि क्या कुछ कर सकते हैं हम। फॉर एग्जांपल कलर्स किस किस्म के हो सकते हैं, आप कलर्स अलग से भी सेपरेट सेक्शन में बड़ा डिटेल में डिस्कस किए गए हैं कलर्स, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। देन कंटेनर्स का ब्रीफ एक ओवरव्यू दिया है, ये कंटेनर सेपरेटली भी डिस्कस हो रहे हैं। फिर पैनल का कॉन्सेप्ट आ रहा है, पैनल्स, नोड्स, कोड्स, तो ये आपको पैनल्स नज़र आ रहे हैं, नोड्स हैं, कोड्स हैं। तो ये बहुत डिटेल में डिफरेंट एग्जांपल्स दी हुई हैं कैसे हमने यूज़ करना है, और इसको इन पूरी जो डिटेल्ड है उसका एक ओवरव्यू, विजुअल ओवरव्यू इंट्रोडक्शन सेक्शन में दिया हुआ है। तो विजुअल ओवरव्यू मैं भी आपको देता हूँ यहीं से, वेब पेज से, ताकि आपको एक एक पहले तो एक बहुत ही एक जेनेरिक सा आइडिया हो जाए कि इससे क्या कुछ कर रहे हैं हम। फिर इसको हम डिफरेंट सेक्शंस को, कुछ सेक्शंस को खोल के देख लेंगे कि कैसे हम एक कोड लेवल पे किस तरीके से हम जा रहे हैं, कि किस तरह हम उसमें इनको ऐड करते हैं। तो लेट्स हैव ब्रॉडर ओवरव्यू ऑफ कंप्लीट इंट्रो सेक्शन। काफ़ी बड़ा सेक्शन है ये, लेकिन आपको एक पूरा ओवरव्यू मिल जाएगा कि इससे हम क्या कुछ कर सकते हैं। तो पहली चीज़ तो ये देखें कि जितने भी इसकी कलर स्कीम्स हैं, इनमें प्रीफिक्स आ रहा है W3-, ये W3- कलर। अगर कलर अप्लाई करना है हमने, तो हम W3- कलर करके हम क्लास यूज करेंगे इसकी। फिर यहाँ पे आकर देखेंगे तो W3- जरूर आएगा, उसके बाद फिर आगे कोई उसमें आएगा W3- पैनल। देन W3- पैनल है, ये भी W3- कार्ड, W3- टेबल, W3- अनऑर्डर्ड लिस्ट UL, W3- बटन, BUTTN भी है और BTN भी यूज़ कर सकते हैं, और W3- टैग। तो आप जो बुनियादी बात है बताने वाली के W3- यूज़ होगा। दी ये इसकी अपनी क्लासेस हैं, इन क्लासेस को आप यूज़ करेंगे। दीज आर क्लासेस आर वेरी सिंपल टू यूज़। तो इसे हम देखते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट वन। W3 color classes are inspired by modern colors used in marketing, रोड साइंस एंड स्टिकी नोट्स। तो इन कलर्स को हम ये जब यहाँ पे अगले टैब खोलेंगे कलर का, तो ज़्यादा डिटेल में देख लेंगे। बहरहाल बड़े
मॉडर्न किस्म के कलर्स जो आजकल यूज़ हो रहे हैं वो कलर्स यूज़, रेडीमेड कलर्स हैं, आप कलर का नंबर डालेंगे तो वो कलर यूज़ हो जाएगा। उसके बाद कंटेनर का कॉन्सेप्ट है इसके अंदर। W3 कंटेनर क्लास इज मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ W3 CSS क्लासेस। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास ये है कंटेनर। कोई भी चीज़ करनी है, जैसे हम कल हमने देखा था डिव हम यूज़ कर रहे थे, W3 डिव यूज़ कर रहे थे, तो यहाँ पे हम कंटेनर यूज़ करते हैं। और कंटेनर किस किस पे अप्लाई हो सकता है? पहली बात है कि इट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ W3 क्लासेस, इट प्रोवाइड्स इक्वालिटी लाइक margins, common margins, common padding, common vertical alignment, common historical alignments, common fonts, common colors। तो अब कंटेनर, जैसे ही कंटेनर क्लास अप्लाई करेंगे कहीं पे तो आपको एक स्टैंडर्ड किस्म के मार्जिन पैडिंग मिल जाएगी, तो आपको अपनी फर्दर फाइन ट्यूनिंग नहीं करनी पड़ेगी। एक स्टैंडर्ड मार्जिन मिल जाएंगे आपको, स्टैंडर्ड पैडिंग मिल जाएगी, स्टैंडर्ड वर्टिकल हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट्स मिल जाएंगी, स्टैंडर्ड फॉन्ट्स मिल जाएंगे। और नो डाउट आप उनको चेंज कर सकते हैं, लेकिन आपको एक जनरल और ऑप्टिमम किस्म के ये एडजस्टमेंट्स मिल जाएंगी कंटेनर क्लास को जब भी अप्लाई करेंगे। अब नाउ द W3 कंटेनर क्लास इज टिपिकली यूज इन HTML कंटेनर एलिमेंट्स। अब ये जो है ये HTML कंटेनर एलिमेंट्स हैं, div, हेडर, फुटर, आर्टिकल, सेक्शन, ब्लॉक कोड, फॉर्म, और भी बहुत सारे हैं। तो इन किसी भी कंटेनर टैग के पर हम W3 कंटेनर क्लास को अप्लाई कर सकते हैं। अब कैसे अप्लाई करेंगे, सिंटैक्स आपको मैं दिखाता हूँ। तो इन ये स्टैंडर्ड डिव है, इनके ऊपर आप सिंपली कंटेनर क्लास अप्लाई कर देंगे तो वो जो डिव का पूरा स्टाइल है वो इस इन कंटेनर क्लास के स्टाइल पे आ जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अप्लाई किया हुआ है कंटेनर, तो ये आपको हेडर क्लास पे अप्लाई किया हुआ है, ये फुटर क्लास पे अप्लाई किया हुआ है, ये पैराग्राफ पे अप्लाई किया हुआ है। फिर देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ पैनल, concept of nodes, concept of codes, and W3 panel class can display all kinds of nodes and codes। अब ये डिफरेंट आपको व्यू नज़र आ रहे हैं, ये ग्रे है, ग्रे नज़र आ रहा है, ये आपको लेफ्ट साइड पे बार सी नज़र आ रही है, रेड बार नज़र आ रही है, ये आपको बॉटम पे ग्रीन बार नज़र आ रही है, फिर ये ग्रे बार नज़र आ रही है लेफ्ट पे, और कोटेशन नज़र आ रही है बीच में। तो जैसे ये W3 कोड्स नज़र आ रहा है आपको लेफ्ट साइड पे, तो जैसे ही W3 कोड आप यूज़ करेंगे तो ये आपको बिल्कुल इस तरह का स्टाइल रेडीमेड मिल जाएगा। देन W3 पैनल क्लास कैन आल्सो बी यूज फॉर ऑल काइंड्स ऑफ अलर्ट्स। ये इस तरह के अलर्ट्स बना सकते हैं आप। फॉर एग्जांपल ये पहली एग्जांपल आ रही है अब यहाँ पे, इसको मैं डिस्कस करता हूँ, आपको आइडिया होगा। ये डिव है, ये डिव क्लास है। इस डिव के अंदर हमने क्या किया, क्लास इज इक्वल टू W3 पैनल, तो ये पैनल अप्लाई हो गया इस पे। अब पैनल के अपने मार्जिन हैं, अपने उसके पैडिंग्स हैं, वो सारी स्टैंडर्ड पैडिंग अप्लाई हो गई हैं। फिर हमने कहा जी कलर यूज़ किया, हमने कहा जी W3 पेल येलो, तो इसका कलर पेल येलो सा हो गया है पैनल का। फिर हमने कहा जी W3 बॉर्डर, तो ये आपको आउटसाइड पे बॉर्डर भी लगा हुआ नज़र आ गया। लेट मी रिमूव, मैं ये कलर और बॉर्डर रिमूव करता हूँ यहाँ से, पेल येलो की क्लास और बॉर्डर की क्लास में रिमूव करता हूँ, और देखें क्या होगा। ये देखें पैनल है, लेकिन पैनल्स का कलर गायब हो गया और बॉर्डर गायब हो गया। अगर ये पैनल भी रिमूव कर दूं मैं, तो ये देखें इसकी स्टाइल थोड़ा सा चेंज हो गया। अब यहाँ पे देखें ये जो डिव है ये बगैर किसी उसके सेटिंग के है,
और नीचे वाला जो डिव है W3 पैनल, W3 येलो, W, तो अगर आपने ये 3 क्लासेस डाल दिए हैं तो आपको इस तरह का पैनल मिल रहा है। और अगर आपने ये नॉर्मल डिव यूज किया, कोई स्टाइल नहीं यूज किया, तो आपको इस तरह का डिव मिलेगा, जिसमें पहली पहली हेडिंग आ रही है H3 लेवल की, और देन देयर इज अ पैराग्राफ। तो आप यू कैन सी कि हमने यहाँ पे जैसे उन्होंने W3 क्लास यूज़ की हुई है, इसके अंदर ऑनलाइन रेफरेंस यूज़ किया हुआ है, और उसकी वजह से दे आर एबल टू यूज़ W3 क्लासेस। तो ये 3 क्लासेस यूज़ की हैं, पैनल, कलर और बॉर्डर। और जबकि ऊपर जो डिव है ये सिंपल डिव है, इसमें कोई हमने क्लास यूज़ नहीं की। तो ये देखें इस तरह नज़र आ रहा है, और जब ये 3 क्लासेस हमने बीच में डाल दी हैं तो ये इस तरह नज़र आ रहा है। आई कैन चेंज इट्स कलर, येलो था, मैं पेल येलो, जैसे आपने पहले भी देखा है पेल येलो डला हुआ था, तो ये पेल येलो हो गया है। इसको मैं ग्रीन कर दूं तो ग्रीन हो जाएगा, कुछ भी कर दूं। सो इट्स सो सिंपल, ये ग्रीन हो गया है, ठीक हो गया। फिर बॉर्डर के कलर भी चेंज कर सकते हैं, वो आगे फिर आप नज़र आएगा आपको कि कैसे हम करेंगे। सो इट्स वेरी सिंपल टू यूज़ W3 CSS क्लासेस। अच्छा जी, एनी क्वेश्चन इन दिस डेमो? हाँ सर। चलें फिर हम आगे चलते हैं। अब इसमें W3 कार्ड की एक क्लास है। W3 कार्ड्स आर सुटेबल फॉर बोथ इमेजेस एंड नोट्स। अब कार्ड में देखें क्या होगा, इसके शेडो आ गया इसके नीचे। जैसे ही आपने कार्ड की क्लास अप्लाई की है, इसमें नीचे आपको शेडो बना हुआ नजर आ रहा है। इसमें आप कंटेंट भी डाल सकते हैं कार्ड के अंदर, और कार्ड के अंदर आप इमेज भी डाल सकते हैं। नीचे बेहतरीन कार्ड है, बड़ा अच्छा इसकी लुक एंड फील है जो आपको नज़र आ रही है। फॉर एग्जांपल ये इसका कोड नज़र आ रहा है आपको, ये इसमें इमेज डाली हुई है। तो किया क्या हमने, एक हमने कंटेनर बनाया है, कंटेनर के अंदर फिर हमने H2 लेवल की हेडिंग डाल दी है, जो आपको ये नज़र आ रही है। ठीक हो गया। और अगर फॉर एग्जांपल मैं इसमें बॉर्डर डाल दूं, W3 डैश बॉर्डर, तो क्या होगा, ये आपको एक कंटेनर नज़र आ रहा है जिसका बॉर्डर भी है। इसमें मैं कलर भी डाल दूं, फॉर एग्जांपल कंटेनर के अपने कलर हैं, W3 पेल येलो, एक क्लास और डाल दी इसके अंदर। ये देखें पूरे का पूरा एक कंटेनर है, ये येलो कलर का कंटेनर है। कंटेनर के अंदर हेडिंग है जो ये नज़र आ रही है आपको, फोटो कार्ड। फिर इसके अंदर एक चाइल्ड डिव है, ये चाइल्ड डिव है। चाइल्ड डिव के अंदर हमने कार्ड की क्लास यूज़ कर रहे हैं, W3 कार्ड। तो ये सारे शेडो वगैरह आ गए हैं। लेट मी रिमूव दिस, ये अगर मैं क्लास को रिमूव कर दूं तो क्या होगा, ठीक है देखते हैं। तो ये देखें वो सारा शेडो इफेक्ट ख़त्म हो गया। तो सिंपली अगर एक कार्ड की क्लास को यूज़ करने से उसका लुक एंड फील कितनी ज़बरदस्त हो गया है। और वेट 50% है, तो इसलिए ये 50% स्क्रीन पे नज़र आ रहा है मुझे। 50% वेट था इसकी। इसी तरह फिर इसके नीचे एक और कंटेनर ऐड किया हमने, ये नीचे पैराग्राफ ऐड करने के लिए। ये पैराग्राफ सेंटर में है, इसके सेंटर में ये इसका कैप्शन डालने के लिए एक और डिव डाला है, और डिव इसके नीचे, और डिव में फिर जो उसका कैप्शन है वो कैप्शन डाल दिया है। सो यू कैन सी हाउ इट इज़ लुकिंग। फॉर एग्जांपल इसका मैं कलर चेंज कर दूं, W3 ब्लू करते हैं इसको, चलें। आई होप इट वर्क्स, क्योंकि ये भी कंटेनर क्लास है, तो ये इस पर ब्लू कलर अप्लाई हो गया। ठीक है, आई होप यू आर लाइकिंग इट। ये कितनी सिंपल है ये यूज़ करनी। यस सर, काफी आसान है। आसान है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि क्या कुछ कर सकते हैं इससे।
बस आपने जाके क्लास डालनी है और स्ट्रेट अवे उसमें उठा लिया है। कॉन्सेप्ट इसमें यह है कि आप डिव क्रिएट करते रहते हैं, डिव के अंदर चाइल्ड डिव डाल देते हैं, तो यानी कंटेनर के अंदर कंटेनर, ऐसा करके आप पूरे अपना एक पेज को बना लेते हैं। ये विड्थ जैसे 50% एडजस्ट की हुई है, अब मैं फॉर एग्जांपल इसको मैं 100% करता हूँ, तो ये पूरे के पूरे उस पर डिव पे ये एक्सपेंड कर जाएगा। ये पूरे पूरे उसमें पूरी विड्थ कवर कर लिया इसने व्यू पैन की। तो जनरली कार्ड छोटे होते हैं तो ये 50% से इसकी लुक ज़्यादा बेहतर बनती है कि कार्ड्स बनाए हुए हैं आपने। ठीक है जी, तो ये कार्ड का कॉन्सेप्ट का जनरल आइडिया हो गया आपको। अच्छा जी, इसके बाद सर जी सर हम ये HTML बना सकते हैं कार्ड W3CS यूज किए बगैर? क्या दोबारा कहें, क्या क्वेश्चन है? हम ये कार्ड HTML में बना सकते हैं W3CS यूज किए बगैर? हाँ हाँ, वो तो आपको फिर रॉ सीएसएस यूज करनी पड़ेगी ना, शेडो इफेक्ट डालने पड़ेंगे, वो सारी कार्रवाई करनी पड़ेगी ना आपको। जैसे मैंने अभी सर सीएसएस कवर की थी, उसमें आप देखेंगे कि सीएसएस में शेडो इफेक्ट कैसे डाल सकते हैं। तो अब शेडो इफेक्ट डालना पड़ेगा, तो वो थोड़ा सा उसका वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा ना। कर तो बिल्कुल सकते हैं, ये जो W3 CSS बनाई गई है, ये रॉ सीएसएस को ही यूज करके बनाई गई है। फॉर एग्जाम्पल ये W3 कार्ड है, फॉर एग्जाम्पल ये लेट मी गो हियर, ये है ना ये वाली, इसमें ढूंढते हैं W3 कार्ड कहाँ पर है। लेट मी फाइंड W3 कार्ड। तो ये देखें W3 कार्ड, ये आ रही है, ये W3 कार्ड की क्लास आ रही है। ठीक हो गया? राइट सर। तो ये इसने वही, ये देखो W3 हॉवर शेडो, ये रॉ सीएसएस को यूज करके नई क्लासेस क्रिएट की हैं जो कि सिंपल टू यूज है। ये पूरा वो सीएसएस ही लिखी हुई है इसके अंदर। सही हो गया? तो आप यस अपनी सर ठीक। सीएसएस यूज कर लें। वो ऑब्वियसली ये सारा कुछ लिखना पड़ेगा आपको ना, फिर शेडो होवरिंग शोवरिंग सारा कुछ करना पड़ेगा, इसमें होवरिंग वगैरह भी काम कर रही है। तो ये उन्होंने एक सिंपल टू यूज बना दी है क्लास। ठीक है, सो इट्स गुड क्वेश्चन। इनफैक्ट आपको बाकी क्लास वालों को भी, आपके स्टूडेंट्स को आइडिया हो गया होगा कि ये बेसिकली सीएसएस से ही बनाई गई है, लेकिन है कि वो सारे कॉन्सेप्ट वही हैं सारे, लेकिन है कि ये इसको अब उन्होंने एक फिक्स कर दिए हैं क्लासेस। और इतनी ज़्यादा इसके अंदर वैरायटी है और इतने इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है, सीएसएस में भी है, लेकिन ये सिंपल टू यूज़ है असल में। ठीक हो गया? अच्छा जी, तो एनी अदर क्वेश्चन? अच्छा, फिर आगे देखें जी, टेबल। इसमें W3 टेबल, ये क्लास यूज कर लेंगे तो आपको ऐसा मजेदार सा टेबल एकदम बन जाएगा ऑटोमेटिकली। लेट्स टेस्ट इट, ट्राई करते हैं इसको। ये देखें, ये टेबल बना हुआ है ऑलरेडी, इसके अंदर एक शेड्स आ रहे हैं, सारा कुछ आ रहा है। किया क्या हमने, ये टेबल है पूरा, नॉर्मल सीएसएस टेबल है ये। इसके अंदर मैं 3 क्लासेस डाल दी हैं। W3 टेबल पहले डाली है ताकि टेबल के स्टाइल अप्लाई हो जाएं, फिर W3 स्ट्राइप्ड है और W3 बॉर्डर है। अगर मैं W3 बॉर्डर को ख़त्म कर दूंगा तो आउटर बॉर्डर ख़त्म हो जाएगा, जो बॉर्डर पहले भी यूज़ करते आ रहे हैं। देखें, बाहर आउटर बॉर्डर ख़त्म हो गया। स्ट्राइप्ड ख़त्म कर दूंगा तो इसकी स्ट्राइप्स ख़त्म हो जाएंगी। अदरवाइज़ आपको, अगर आपको थोड़ा सा याद हो कि वो ये स्ट्राइप्स बनाने के लिए थोड़ा सा लंबा कोड लिखना पड़ता है सीएसएस का, स्ट्राइप्स ख़त्म हो गई हैं। तो अगर मैं ये भी ख़त्म कर दूँ, स्टिल इट विल बी अ टेबल। अगर ये भी W3 टेबल भी ख़त्म कर दूँ तो ये फिर भी, लेकिन आप देखें इसका, मैं रन करूँगा तो ये क्या होगा इसके साथ। अब ये जो टेबल है, ये सिंपल, अगर आप सिंपल HTML में लिखेंगे तो ये टेबल बन रहा है। अब इसके अंदर अगर मैं W3 टेबल ऐड करता हूँ तो इसमें एक जो इसके उन्होंने अपने कुछ स्टाइल डाले हुए हैं उसके अंदर मुनासिब किस्म के, वो स्टाइल अप्लाई हो गए हैं। फिर मैंने क्या किया, इसमें मैंने किया W3 स्ट्राइप डाल दिया तो स्ट्राइप टेबल बन गया, ये स्ट्राइप टेबल बन गया। फिर मैंने W3
बॉर्डर, अब बॉर्डर की अपनी वेरिएशंस हैं, स्ट्राइप की अपनी वेरिएशन है, वो आप जब फर्दर आप देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि और बहुत कुछ कर सकते हैं, कलर्स कॉम्बिनेशन डाल सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। तो लेकिन एक इट इज जस्ट एन ओवरव्यू कि आप कैसे आप इन क्लासेस को यूज कर रहे हैं और कितना आपका काम आसान हो जाता है। एनी क्वेश्चन ऑन दिस डेमो? नो सर। ओके, आगे चलते हैं। लिस्ट, ये आपको नजर आ रहा है, डिफरेंट लिस्ट हैं, इनके अंदर होवरिंग इफेक्ट्स भी आ रहे हैं, आगे यहाँ पे क्रॉस के बटन भी लगे हुए हैं, बहुत कुछ है। तो सिंपल सी, और ये है क्या है, सिंपल लिस्ट है ये, लेट्स टेस्ट इट। अच्छा जी, ये है बेसिकली ऑन ऑर्डर लिस्ट, ये जो लेफ्ट साइड ये आपको नजर आ रही है, ये ऑन ऑर्डर लिस्ट है। इसके अंदर आपने कहा W3 UL और W3 बॉर्डर डाल दिया इसके अंदर। ये जरा मैं ख़त्म करूँ पहले, तो देखूँ, सिंपल लिस्ट बना देते हैं इसको, बल्कि पूरी क्लास ही गायब कर देते हैं, नहीं अप्लाई करते हैं हम इसको। तो ये लिस्ट है सादी HTML की। मैंने क्या किया, इसमें सिर्फ 2 क्लासेज ऐड किए हैं, W3 UL, तो ये इसका ऑलरेडी कुछ ना कुछ इसकी, मतलब कुछ ना कुछ इसकी शक्ल निकल आई है। बॉर्डर डाल दिया तो आउटर बॉर्डर भी आ गया इसके अंदर। बाकी इसमें काफ़ी सारी वेरिएशन हैं, जब हम अलग से देखेंगे कि लिस्ट के अंदर क्या कुछ कर सकते हैं, कलर्स डाल सकते हैं, होवरिंग इफेक्ट डाल सकते हैं, तो वो आपको नज़र आ जाएगा। लेकिन सिर्फ सिंपली आपने एक एक क्लास ही डालनी होगी, एक एक क्लास डालेंगे तो वो एक ज़बरदस्त प्रोफेशनल किस्म की लुक आ जाएगी। अच्छा, ये इसी तरह देखें, ये बटन्स बना सकते हैं आप। ये क्लासेस यूज़ करनी है, W3 डैश बटन, BUTTN और W3 डैश BTN क्लासेस। तो आप इस किस्म के बटन बना सकते हैं, रेक्टेंगुलर बटन, राउंडेड रेक्टेंगुलर बटन बना सकते हैं। दिस ऑल इज डन। फिर पूरे वाइट बटन बना सकते हैं जो कि पूरी विड्थ को कवर कर रहे हो। फिर आप ये बटन्स के पैनल्स बना सकते हैं। फिर सर्कुलर बटन बना सकते हैं, स्क्वायर बटन बना सकते हैं। दीज ऑल पॉसिबिलिटीज आर देयर जो आप कर सकते हैं। Similarly, you can create tags, labels, badges, and signs. W3 tag and W3 badge classes are capable of displaying all kinds of tags, labels, badges, and signs. ये different examples हैं जो कि आप create कर सकते हैं। तो again, simple classes डालेंगे, थोड़ा सा उसको tweaking करेंगे तो ये चीज़ें बन जाएंगी आपकी। फिर रिस्पॉन्सिव का कॉन्सेप्ट हमने कल डिस्कस किया था। W3 रिस्पॉन्सिव का ये आपको नज़र आएगा यहाँ पे, पूरा रिस्पॉन्सिव को, ये W3 रिस्पॉन्सिव, ये पूरे का पूरा ये एक्सप्लेन किया गया है कैसे हमने रिस्पॉन्सिवनेस ऐड करनी है बाय यूजिंग W3 CSS, और विच इज़ इम्पोर्टेंट। तो ये आप इस तरह, जैसे हमने डिस्कस किया था कि 12 कॉलम, आजकल जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट ये है कि हम पूरी जो स्क्रीन विड्थ होती है, वी डिवाइड दिस स्क्रीन विड्थ और व्यू पोर्ट इनटू 12 कॉलम्स, और फिर उन कॉलम्स के अंदर हम वो कर सकते हैं। तो 12 कॉलम का कॉन्सेप्ट W3 CSS में भी आप आसानी के साथ इन्फोर्स कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो अभी कोड लेवल पे नहीं जाते, लेकिन आपको जस्ट एक ओवरव्यू मैं दे रहा हूँ। सिमिलरली W3 डिस्प्ले की एक क्लास है, W3 डैश डिस्प्ले। These classes allow you to display HTML elements in specific positions. जैसे ये टॉप लेफ्ट पोजीशन है, टॉप मिडल, टॉप राइट, राइट मिडल लेफ्ट। तो इन पोजीशंस पे डिस्प्ले क्लास में आप मुख्तलिफ पोजीशंस पे आप टेक्स्ट को डिस्प्ले करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये इमेज नज़र आ रही है राइट साइड पे, एक इमेज है, इमेज डाली है आपने W3 डिस्प्ले क्लास में, और फिर मुख्तलिफ पोजीशंस पे टेक्स्ट प्लेस कर दिया है, जस्ट सिंपल तरीके से। तो इसका भी कोड देखेंगे, लेकिन ये दिस इज पॉसिबल कि हम W3 डिस्प्ले क्लास को यूज़ करके ये काम कर सकते हैं। देन मॉडल,
मॉडल का कॉन्सेप्ट, एनीबडी हु नोज द कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडल, क्या होता है ये? नहीं सर। अच्छा, मॉडल में ये होता है कि फॉर एग्जाम्पल ये मैं खोलने लगा हूँ मॉडल, ये देखें मॉडल खोल दिया मैंने, तो बाकी पूरी की पूरी स्क्रीन मेरी इनएक्टिव हो जाती है। सिर्फ मेरा जो डायलॉग बॉक्स खुलता है, मॉडल डायलॉग बॉक्स कहते हैं इसको हम, सिर्फ यही एक्टिव है, बाकी एवरीथिंग गेट्स डिसेबल। ये कई दफ़ा हमें करना पड़ता है, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो स्क्रीन खोली है सिर्फ उसी स्क्रीन पे ही मैनिपुलेशन हो, डेटा इनपुट हो या कोई भी चीज़ हो, बाकी कहीं और यूज़र अपनी इनपुट ना डाल सके। तो उस वक्त फिर हम मॉडल डायलॉग बॉक्स खोल देते हैं, ताकि सिर्फ वही डायलॉग बॉक्स एक्टिव हो और उसी को यूज़र मैनिपुलेट कर सके, बाकी ना कर सके। जब तक आप इसको हम क्लोज नहीं करेंगे, आप बाकी उस पर कहीं और स्क्रीन पे मैनिपुलेशन नहीं कर सकते। तो ये आपको प्रोग्रामेटिकली जब आप चीज़ें बिल्ड कर रहे होते हैं, तो आपको कई दफ़ा मॉडल डायलॉग बॉक्स खोलने पड़ते हैं। ठीक हो गया। इसी तरह आप मॉडल इमेज भी खोल सकते हैं, ये देखें, लेकिन दाएं यहाँ ये मुझे ये अलाउ कर रहा है मुझे, लेकिन है कि बाकी आप ये साइड देखें कि वो शेडो में चली गई है। तो अगर क्रॉस लगा देंगे तो आप ऑप्शन दे सकते हैं कि क्रॉस किया जाए इसको, या इसको कहीं लेफ्ट राइट में क्लिक करूं तो तब ये बंद हो। लेकिन इट गिव्स काइंड ऑफ देता है कि जी एम्फेसिस इस वक्त स्क्रीन में किस चीज़ पर है, बाकी चीज़ें डिम हो गई हैं। तो ये दीज आर द मॉडर्न styles which can be used, can be applied with W3 CSS। तो इसके लिए जो क्लास है that is W3 मॉडल क्लास। इसके बाद प्रोग्रेस बार्स आप बना सकते हैं। इसके लिए क्लास है W3 प्रोग्रेस बार की क्लास है। यहाँ पे आपको नजर आएगा लेफ्ट साइड पे प्रोग्रेस बार्स, इनको डिटेल में मुख्तलिफ एग्जांपल्स आपको नजर आएंगी यहाँ पे प्रोग्रेस बार्स की। और फॉर एग्जांपल आप डायनेमिक बार्स भी बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये देखें, तो इससे डायनेमिक बार्स को आप प्रोग्रामेटिकली भी हैंडल कर सकते हैं। आप स्टाइल प्रोग्रामेटिकली चेंज करेंगे तो ये प्रोग्रेस बार्स इस तरह की बना सकते हैं आप। मतलब इसके अंदर कोई आप कोई जावास्क्रिप्ट वगैरह यूज़ करके तो आप इस तरह की डायनामिक बार्स बना सकते हैं। ठीक है, और स्टैटिक बार्स भी बन सकती हैं। ओके, देन यू कैन आल्सो क्रिएट ड्रॉप डाउन लिस्ट। इसके लिए आपने क्लास जो यूज़ करनी है दैट इज W3 डैश ड्रॉप डाउन। ये देखें, मैं होवर मी के ऊपर मैं लेके जा रहा हूँ तो एकदम वो ड्रॉप डाउन खुल जाता है विदाउट क्लिकिंग एनीथिंग। और यहाँ पे होवरिंग इफेक्ट है, लेकिन ड्रॉप डाउन नहीं खुल रहा। जब मैं क्लिक करूंगा फिर ये ड्रॉप डाउन खुलेगा। सो दिस ऑल इज पॉसिबल बाय यूजिंग W3 डैश ड्रॉप डाउन क्लास। इसके बाद आ गया एकॉर्डियंस। एकॉर्डियंस कैन बी क्रिएटेड विद W3 CSS। इसके लिए आपने यूज करनी है एकॉर्डियन क्लास। और एकॉर्डियन क्या होता है, ये फॉर एग्जाम्पल मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो फर्दर डिटेल खुल जाएगी। इस पर क्लिक किया, इसके अंदर लिंक बने हुए हैं, इसको क्लिक किया तो इसके अंदर इमेजेस आ गई हैं। सो दिस काइंड ऑफ थिंग can be done. All these are modern concepts, modern styles which are used in modern websites. ये काम इनसे हम कहते हैं accordion. These can be created with W3 CSS. इसके बाद tabs आ गई। W3 tabs. Tabs are perfect for single page web application or for web pages capable of displaying different subjects. तो ये आपको लंदन टैब नज़र आ रहा है, पेरिस टैब, टोक्यो टैब, तो ये टैब्स बना सकते हैं आप। सो आई होप यू आर अप्रिशिएटिंग द पावर ऑफ W3 CSS। दीज सर ये आर टैब, जी दीज आर टैब इमेज गैलरी। सर जी वेब जनाब। डेवलपर्स जो है सर, मतलब मैं फ्रीलांसिंग वगैरह वेबसाइट को चेक करा था, तो वो तो सर बड़ा मतलब चार्ज करते हैं, और काम तो वैसे इतना नहीं होता अगर बंदे को मतलब ये भी मैं देखता हूँ।
आप तो जिसको नहीं पता कि सारा काम ही CSS में हो रहा है और W3 CSS में काम कर रहा है, वो तो कहेगा यार बड़े काम किए यार इस बंदे ने। तो इसी चीज़ के वो पैसे लेते हैं, और आप भी पैसे लिया करेंगे, मुझे भी फ्री बना के नहीं देंगे वेबसाइट जब मैं आपसे कहूँगा। तो आप कहेंगे सर जी इतने पैसे दें, इतना टाइम लगेगा हमारा। नहीं सर। लेकिन मुझे चक्कर नहीं दे सकेंगे आप, मुझे पता होगा कितना आपने कितनी ये एफर्ट है। सर ये तो ठीक है। ओके, सो यू कैन सी, ये आपकी, ये फॉर एग्जाम्पल से मैंने क्लिक किया है तो ये अब नीचे इमेजेस चेंज हो रही हैं। दिस इज अ टैब इमेज गैलरी, तो ये काम कर सकते हैं आप। ओके, देन यू कैन क्रिएट बार्स। देयर इज अ क्लास नोन एज W3 बार। तो यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड पे नजर आएगा ये बार। यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है मुख्तलिफ किस्म की बार्स कैसे बना सकते हैं। सो W3 बार्स हैं, बार्स के अंदर बटन बनाए हुए हैं, बार है, बार के अंदर बटन बनाए हैं। फिर यहाँ पे ये देखें आप कोई सर्च का डाल सकते हैं। तो अगेन दिस अ मॉडर्न स्टाइल नेविगेशन बार विद इनपुट लिंक्स, ये सर्च आ गई बीच में। तो इस किस्म की, ये मॉडर्न किस्म की चीज़ें डाल सकते हैं। बार के अंदर आप ड्रॉप डाउन डाल सकते हैं, सर्च टैब डाल सकते हैं, ड्रॉप डाउन डाल सकते हैं। इसके अलावा फिर आप ये कस्टमाइज किस्म की बार डाल सकते हैं, डिफरेंट कलर्स दे सकते हैं इनको। फिर ये देखें इस किस्म का स्टाइल डाल सकते हैं आप। अच्छा, अगेन ये तो होगी बार्स। देन देयर आर साइड बार्स, एक क्लास है इसमें W3 साइड बार। साइड बार क्या चीज़ है? ये जैसे आप मोबाइल पे चीज़ें नज़र आ रही होती हैं आपको, मैं क्रॉस किया तो यहाँ पे डैश नज़र आ गए हैं, क्लिक किया तो ये साइड बार खुल गई है, और साइड बार के अंदर ड्रॉप डाउन वगैरह है, सारा कुछ है इसके अंदर। तो ये दिस फॉर दिस यू कैन यूज W3 साइड बार क्लास। अच्छा जी, देन पेजिनेशन जैसे आपको नज़र आती है इसके अंदर LMS के अंदर। तो ये पेजिनेशन कर सकते हैं आप, ये डिफरेंट पेजेस हैं, क्रिएट कर सकते हैं, प्रीवियस, नेक्स्ट, लेफ्ट, राइट, ये सब हो सकता है। तो ये आपको यहाँ पे नज़र आएगा W3 पेजिनेशन। यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया डिफरेंट वेरिएशन कैसे की जा सकते हैं, इसका कोड डिस्कस किया गया है यहाँ पे। ओके, देन स्लाइड शोज। ये देखें, ये स्लाइड शोज भी आपको यहाँ पे कहीं नज़र आ जाएंगे। ये स्लाइड शो, यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया स्लाइड शो का क्या कोड होगा, क्या स्टाइल यूज़ करना है। अब ये देखें इसके अंदर ये आप बटन्स हैं, डिफरेंट किस्म के डॉट से बने हुए आ रहे हैं। अब ये एरोस भी नज़र आ रहे हैं। so this is possible. Then you can combine models and slideshows to create light box model image gallery. ये फॉर एग्जांपल ये मैंने क्लिक किया है तो इस तरह की चीज़ आ गई है। होवरिंग इफेक्ट्स भी चल रहे हैं साथ साथ। फिर यू कैन एनिमेशंस भी हो सकती हैं इसके अंदर। फॉर एग्जांपल ये मैं क्लिक करता हूँ इसको तो ये ऊपर से आ रही है, जैसे पावर पॉइंट में वाली एनिमेशन भी है इसके अंदर। बॉटम से आ रही है, लेफ्ट, राइट, फेड, जूम, स्पिन। ठीक है, तो पूरी प्रेजेंटेशन आपकी बन सकती है एनिमेशन वाली इसके अंदर। तो यू हैव टू यूज W3 एनिमेट क्लास। फिर आ जाएं जी इमेजेस पे। इमेज में से आप देखें रेक्टेंगुलर इमेजेस, राउंडेड रेक्टेंगुलर इमेजेस हो सकती हैं, राउंड सर्कल्स में डाल सकते हैं, एलिप्स वगैरह यूज कर सकते हैं, ये इमेजेस यूज कर सकते हैं। देन इफेक्ट्स, ये एक इमेज है जिसका नॉर्मल इमेज है, फिर इसमें ओपेसिटी डाल दी है तो ये थोड़ी सी फेड हो गई है। फिर ग्रे स्केल, कोई कलर नहीं है इसके अंदर। फिर सीपिया, सिंपल एक एक लाइन की क्लास आपने यूज करनी है और यू कैन क्रिएट वेरियस इफेक्ट्स ऑन द इमेजेस। फिर फॉर्म्स पर देखें, बहुत ही ब्यूटीफुल फॉर्म्स कैन बी क्रिएटेड विद W3 CSS। आपने यूज़ करना है W3 इनपुट क्लासेस को। ये इसमें देखें ग्रे शेडो आ रहा है,
और पूरी विड्थ कवर कर रहा है। फिर ये आपका इनपुट आ गया, नॉर्मल है 1 2 3, इसके ऊपर लिखा हुआ आ रहा है। जैसे ही मैं टाइप करूंगा तो ये, यानी कि आपको अलग से लेबल डालने की जरूरत नहीं है, अलग से लेबल डालने की जरूरत नहीं है, लेबल उसके अंदर ही आ रहा है लिखा हुआ। जैसे ही लिखना शुरू करेंगे आप, लेबल गायब हो जाएगा। तो आप यू कैन सेव योर स्पेस, टेक्स्ट बॉक्स के अंदर ही आपने लेबल डाल दिया। क्लिक मी, ये देखिए एनिमेटेड इनपुट है, ये क्लिक किया मैंने तो पूरी एक्सपेंड होके वाइड हो गई है। तो दिस स्टाइल इज, इसका एक्सपेंडेबल इनपुट्स बना सकते हैं आप। फिर फॉर्म्स, कलरफुल फॉर्म बना सकते हैं आप, कलरफुल चेक बॉक्सेस हैं, मेल फीमेल ये सारा कुछ एनेबल डिसेबल भी कर सकते हैं। सो फॉर दिस यू हैव टू यूज, ये वाली क्लास है W3 इनपुट क्लास यूज करनी है आपने। ओके, देन फिल्टर्स, फिल्टर यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक लिस्ट है पूरी, इसको आपने फिल्टर करना है, तो मैं सिंपल टाइप करूंगा तो फिल्टरिंग शुरू हो जाएगी, ALF, तो ये लिस्ट सेलेक्ट हो गया है। अगेन इट्स अ मॉडर्न स्टाइल। अब जैसे टाइप करना शुरू करते हैं तो फिल्टरिंग शुरू हो जाती है। K लिखा है मैंने, KO, तो ये दो रह गए हैं। सो फॉर दिस यू कैन यूज, अब फिल्टरिंग में आप ये देखें यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन किया गया, W3 CSS फिल्टर्स, फिल्टर्स किस तरीके से लगाने हैं आपने, वो आ गया यहाँ पे। अच्छा, फिर आप यू कैन यूज ब्यूटीफुल फॉन्ट्स। W3 CSS इज एक्सट्रीमली इजी टू ऐड फॉन्ट्स टू अ वेबसाइट। ये देखें ये फॉन्ट, ये आप बेसिकली गूगल फॉन्ट्स होते हैं इस तरह के, तो वो फॉन्ट्स आप ऐड कर सकते हैं, थर्ड पार्टी फॉन्ट्स को ऐड कर सकते हैं इसके अंदर W3 CSS क्लासेस के अंदर। ठीक है जी, तो थर्ड पार्टी फॉन्ट्स यूज कर सकते हैं आप। फॉन्ट्स के लिए आपको यहाँ पे डिटेल नजर आएगी, ये फॉन्ट्स। ठीक है जी, तो ओके, वी टेक अ ब्रेक फॉर, चलें पहले इनपुट वाला हमने कंप्लीट कर लें, थोड़ा सा रह गया। W3 टूल टिप, टूल टिप ये देखें होवरिंग की है तो टूल टिप आ गई है। और तो टूल टिप के लिए आपने यूज करनी है क्लास W3 टूल टिप क्लास। देन कलर थीम्स कैन easily बी एडेड टू एनी वेब एप्लीकेशन। ये एक प्रॉपर थीम है, ब्लू थीम है, ये ब्लू थीम यूज हो रहा है, और ये ग्रीन थीम यूज हो रहा है। इट कैन बी डन। सो हेयर, यहाँ पे आपको मैंने पूरा एक ओवरव्यू दे दिया है, वो भी मोटा मोटा समझे, बहुत ही बस समझे कि इट इज जस्ट टिप ऑफ द आइसबर्ग। आपको एक बहुत सा जेनेरिक ओवरव्यू दिया है। थोड़ा सा हम थोड़ी सी क्लासेस देखेंगे जो हैं उनको कैसे इसको अप्लाई कर रहे हैं डिफरेंट स्टाइल्स को, वो हम शुरू करेंगे। तो हेयर वी टेक अ ब्रेक। तो आपका क्विज होगा अभी, इट इज़ 5:53 PM ऑन माई कंप्यूटर। सो 6 बजे आपका क्विज अनेबल हो जाएगा, तो क्विज आप दे लें, और उसके बाद फिर हम 6:15 बजे हम फिर फर्दर कलर्स वगैरह थोड़े से देख लेते हैं, एक दो हम देख लेंगे स्टाइल्स। बाकी फिर एक सेशन में कल का लूँगा, उसमें फिर हम कुछ क्लासेस को डिस्कस कर लेंगे। पॉइंट ये है कि आपको आइडिया हो जाए इसको यूज़ कैसे करना है। एक तो ये आइडिया होना चाहिए कि क्या कुछ कर सकते हैं, एक है कि फिर इसे यूज़ कैसे करना है। तो वो हम थोड़ा सा और सेशन कल का भी लगेगा, थोड़ा सा आज लगेगा क्विज के बाद, तो यू विल हैव फेयर आइडिया हाउ टू यूज़ दिस W3 CSS। ठीक है, तो let's have a break for 6 minutes. At 6 PM your quiz will be available on LMS. Okay, let's take a break from the lecture. मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ।